کہ وہ دعائیں جو خود اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام میں ذکر فرمائی اور ہمیں آپ کو حکم دیا کہ یہ کہو کہ دعائیں کرو، تو ان دعاؤں کی قبولیت تقریباً یقینی ہے اگر آدمی صدق دل سے مانگے، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ وہ خود فرمائیں کہ یہ کہو مجھ سے، اور پھر جو کہلوا رہے ہیں اس کو رد فرما دیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ، یہ کہو یعنی یہ دعا مانگو کیا کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ بھی عجیب و غریب دعا ہے۔ پہلے اس کا سادہ مطلب عرض کرتا ہوں، پھر اس کی تھوڑی حقیقت اور اس کا پس منظر بھی اللہ نے توفیق دی تو عرض کروں گا انشاءاللہ۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں بھی آپ داخل کریں تو اچھائی کے ساتھ داخل کریں، جہاں بھی داخل کریں تو اچھائی کے ساتھ داخل کریں، اور جہاں سے بھی نکالیں تو اچھائی کے ساتھ نکالیں، اور مجھے اپنی طرف سے ایسی طاقت عطا فرما دیجئے جس کی مدد کی جاتی ہو آپ کی طرف سے۔ یعنی جہاں بھی میں داخل ہوں، کسی گھر میں، کسی مکان میں، کسی دکان میں، کسی شہر میں، تو داخل ہوں تو داخل بھی اچھی طرح ہوں، اور نکلوں تو نکلوں بھی اچھی طرح۔ داخل ہوتے وقت بھی ایسی صورت ہو کہ میں آسانی سے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی پریشانی کے داخل ہو جاؤں، اور نکلوں تو وہ بھی اس طرح نکلوں کہ جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ مقصد میرا پورا ہو جائے، اور نکلنے میں بھی کوئی دشواری پیش نہ آئے، اور مجھے اپنی طرف سے اللہ ایسی طاقت عطا فرما دیجئے کہ جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو۔ طاقت تو عطا ہو گئی، لیکن اگر آپ کی مدد نہیں ہے، اگر آپ کی طرف سے توفیق نہیں ہے اس طاقت کو صحیح استعمال کرنے کی، تو وہ طاقت بیکار ہے۔ لہذا ایسی طاقت عطا فرمائیے کہ جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو۔ اس دعا کا ایک خاص پس منظر ہے، میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن جو ظاہری مفہوم ہے وہ ایسا ہے کہ ہر انسان خوش خرم ہو، عافیت سے ہو۔ یہ چاہیے نہیں چاہیے جب آدمی گھر میں داخل ہو رہا ہو، جب گھر سے نکل رہا ہو اس وقت بھی اس کو اگر آدمی کہیں ملازم ہے اور اپنی ملازمت کی جگہ پر داخل ہو رہا ہے تو وہاں کیا چاہیے کہ نکلنے کے جب میں نکلوں، جس کام کے لیے نکل رہا ہوں تو وہ اچھائی کے ساتھ نکلوں، نکلنے میں بھی آسانی ہو، دشواری نہ ہو، جس مقصد کے لیے نکل رہا ہوں اس میں کامیابی ہو۔ 20-25 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا تھا کہ تلاوت قرآن کریم، قرآن کریم کی تلاوت یہ ہر بندہ اپنے ذمے لازم کر لے کہ جب تک میں قرآن کریم کی کوئی تھوڑی بہت تلاوت نہیں کر لوں گا دنیا کے کسی کام میں نہیں لگوں گا۔ اچھا تو یہ ہے کہ پارہ کم از کم روزانہ ہو جائے، نہیں ہو آدھا پارہ، پاؤ پارہ، بہت مشغول آدمی ہے تو چاہے ایک رکوع پڑھ لے، لیکن تلاوت کے بغیر کوئی دن خالی نہ جائے۔ اسی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں تلاوت کے کیا فضائل ہیں اور اس کے اوپر کیا اجر و ثواب ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ دوسرے نمبر پر کچھ تھوڑا سا ذکر تلاوت کے علاوہ وہ یہ ہے کہ اگر 3 چیزوں کا کم از کم التزام کر لے بندہ، کہ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ ہے نا، یہ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ دوسرے استغفار، استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو،
या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस में मरवी है कि आपने फरमाया कि मैं 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ रोजाना। 70 का लफ्ज उसी हकीकी आदत के लिए भी हो सकता है और तकदीर के लिए भी हो सकता है। अब आप अंदाजा कीजिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अव्वल तो मासूम बनाया था। आपसे किसी गुनाह के सरजद होने का कोई एहतमाल ही नहीं, अल्लाह ने मासूम बना दिया, कभी गुनाह सरजद हुआ ही नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यह ऐलान फरमा दिया कि अगर कभी हो जाए तुमसे कोई गलती तो कद गफ़र लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, तुम्हारे अगले पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह ने पहले ही माफ कर दिया। यानी अव्वल तो गुनाह हो नहीं सकता, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं जिनका मर्तबा बड़ा होता है तो बाज़ औक़ात उनकी छोटी छोटी मेरा गुनाह था उसको गुनाह समझ देते। तो हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन, यानी नेक लोगों की जो अच्छाइयां होती हैं वो मुक़र्रब लोग उनको अपने लिए बुराई समझते हैं। मसलन नेक लोग जो है वो फराइज वाजिबात पर इत्तिबा कर ली, उन्होंने सुन्नतें पढ़ ली, नफलें कोई नहीं पढ़ी, तो नेक तो हैं इसलिए कि फराइज अदा कर लिए, वाजिबात अदा कर लिए, सुन्नतें अदा कर ली मुअक्कदा, नफलें नहीं पढ़ी कभी ये नेक लोगों। तो जो मुकर्रब लोग हैं वो इसको अपने लिए बुराई समझते हैं कि सिर्फ फराइज वाजिबात और सुन्नतों पर इत्तिबा करें, नफलें न पढ़ें। तो हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन। तो नबी करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो मासूम थे तमाम खताओं से, लेकिन जो अपने नबूवत के आला शान के मुताबिक जिसको ये समझते कि मुझसे कोताही हुई उस पर इस्तिग़फ़ार फरमाते। तो हम जैसे लोग जो सुबह शाम पता नहीं कितने गुनाहों में कितने आफतों में गिरफ्तार रहते हैं, हमारे लिए तो इस्तिग़फ़ार एक लाजिमी चीज है। तो इसलिए कहता हूँ कि एक तस्बीह हुई तीसरे कलमे की सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। एक तस्बीह हुई इस्तिग़फ़ार की, अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। दोनों में से कोई एक कर ले या दोनों कर ले, एक तस्बीह। और एक तस्बीह दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे अफजल दुरूद यह है जो हम अत्तहियात में पढ़ते हैं। यूं तो दुरूद के बहुत से सीगे हैं और उलमाए किराम ने दुरूद शरीफ की सीगे यानी दुरूद शरीफ के मुख्तलिफ कलिमात जमा किए हैं अपनी किताबों में, लेकिन इस पर इत्तेफाक है कि सारे सीगों में सबसे अफजल सीगा दुरूद शरीफ का वो है जो हम नमाज में अत्तहियात में पढ़ते हैं। तो ये दुरूद शरीफ, ये 3 तस्बीहें हो, इनका एहतमाम कर लें। और चौथी बात ये कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अर्ज मारूज करे, ये दुआ करे कि या अल्लाह आज का दिन शुरू हो रहा है और अब मैं दुनिया के मुख्तलिफ कामों के लिए निकलूंगा, तो ये मैं एक ऐसे मारके में दाखिल हो रहा हूँ, ऐसे कारजार में दाखिल हो रहा हूँ जहां पर कदम कदम पर नफ्स और शैतान बहकाता है इंसान। तो अल्लाह मैं आपके बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह जब मैं इस कारजार जिंदगी में दाखिल हूँ, जिंदगी के कारोबार में दाखिल हूँ, तो अल्लाह मेरी नफ्स और शैतान से मेरी हिफाजत फरमाइएगा और मुझे गुनाहों से मुझे महफूज रखें। अपनी तरफ से ये नियत कर लो कि जो काम करूंगा अल्लाह मैं आपकी रजा के लिए करूंगा। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज भी आपके लिए, मेरी कुर्बानी भी आपके लिए, मेरी इबादत भी आपके लिए, मेरा मरना और जीना भी आपके लिए। ये नियत कर लो। मिनट का काम, मुश्किल से आधे घंटे का काम हो, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा मुश्किल भी नहीं है, इसका एहतमाम कर लो। तो ये जिक्रुल्लाह के ऊपर बंदे को आमादा करने के लिए, जिक्रुल्लाह के लिए तैयार करने के लिए ये बेहतरीन अमल है। तिलावत कुरान करीम, 3 तस्बीहात, अल्लाह ताला से दुआ और अल्लाह ताला से इखलास की भी दुआ और अपने अमल की दुरुस्ती के लिए भी दुआ। उसके बाद आप निकल गए कारोबार जिंदगी। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने हलाल किया है वो सब आपके लिए हलाल है। तिजारत हो तो तिजारत हलाल है, मुलाजमत हो तो मुलाजमत हलाल है, काश्तकारी हो तो काश्तकारी हलाल है। जितने भी रोजी कमाने के जरिए हैं वो सब अल्लाह ताला ने हलाल किए। बस इतना हो कि पहली बात ये कि चलते फिरते उठते बैठते जबान पर कोई ना कोई जिक्र रहे।
यानी वो तो कर लिया अपनी जगह मामूल पूरा, लेकिन मामूल के पूरा करने के बाद भी चलते फिरते उठते बैठते जबान पर कोई जिक्र हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, इन कलिमात में से या दुरूद शरीफ, बस जो भी जबान पर आ जाए वो जबान उससे तर रहे, चलते फिरते उठते बैठते। देखो इसी को कुरान करीम ने उलुल अलबाब कहा है, यानी वो लोग हैं जो सही माने में अकल रखते। सही माने कौन अकल रखते हैं? अकल भी, यह अलबाब का लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान करीम ने, जो जमा है लुब की। लुब कहते हैं मगज को, जैसे बादाम के अंदर जो असल मगज होता है वो है असल मकसूद, छिलका मकसूद नहीं होता, तो वो मगज मकसूद होता है। अकल की भी एक जाहिर है और एक उसका मगज है अंदर, लुब, वो अकल, गहरी अकल यानी अकल का इंतहाई दर्जा, उसको लुब कहा जाता है। तो कुरान कहता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, आसमानों और जमीन की पैदाइश में और दिन के आने जाने में उसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो खालिस, दकीक और अमीक अक्ल रखने वाले हैं, गहरी अक्ल रखने वाले। वो गहरी अक्ल रखने वाले कौन है? अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो गहरी अक्ल रखने वालों की तारीफ कर दी कि गहरी अक्ल वाले वो होते हैं जो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े भी, बैठे भी, लेटे भी। क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, ये तरगीब इसकी दी जा रही है कि खुदा के बंदो, तुम्हारी सांसें तो चल रही हैं और तुम किसी न किसी काम में मशगूल रहते हो, हमने कोई मवानात नहीं की, लेकिन जबान जो है तुम्हारी अगर वो खाली पड़ी है, काम तो कोई खास कर रहे हो, तुम किताब पढ़ रहे हो या मसलन कोई मजदूरी का काम कर रहे हो, मसलन कोई काम मेहनत का कर रहे हो, मुलाजमत में कोई ड्यूटी लग गई है वो कर रहे हो, खैर ठीक है, तुम्हारा सारा जिस्म उस काम के अंदर मशगूल है, होने दो, जायज है तुम्हारे लिए, लेकिन जबान तो खाली पड़ी है ना, वो तो ऐसे हालत में बिल्कुल खाली पड़ी है। जबान को खाली मत छोड़ो, क्योंकि अगर जबान को तुमने खाली छोड़ दिया तो ये मकूला मशहूर है कि खाने खाली ना देव में गिरत, जो मकान खाली होता है उस पर देव कब्जा जमा लेता है। अल्लाह के जिक्र की तरफ हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा क्या रसूल सबसे अफजल अमल कौन सा है? आपने मुख्तलिफ अमाल के बारे में फरमाया है, तो आपने जवाब में फरमाया काल यकून लिसानो का रत्बम बिज़िक्रिल्लाह, अफजल अमल यह है कि तुम्हारी जबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे, हर वक्त जबान के ऊपर कोई ना कोई जिक्र रहे। और असल बात तो यह है कि जिक्र जबान से भी हो और दिल से भी हो, दिल भी उसकी तरफ मुतवज्जह हो। लेकिन अगर मसरूफियत की वजह से, अफकार की वजह से, मशगूलियात की वजह से आदमी का दिल अपने कुछ काम में लगा हुआ है, वो काम की तरफ मुतवज्जे है और सिर्फ जबान ही जिक्र कर रही है, तो इसको भी बेकार न समझो। ये भी बड़ी करामत और बड़ी बरकत की चीज है, बड़ी फजीलत की चीज है कि कम से कम तुम्हारे जिस्म का एक उज़्व अल्लाह ताला की याद में मशरूफ है, अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा है। तो ये तरतीब जो मैंने अर्ज किया, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबह फजर के बाद सबसे पहले तिलावत, कम से कम 3 तस्बीहात और दुआ इस बात की कि जो मेरा दिन शुरू हुआ है उसके अंदर मुझसे कोई गुनाह सरजद ना हो, सब काम मैं आपकी रजा के मुताबिक करूं, और फिर चलते फिरते जिक्रुल्लाह जिस हालत में भी हो, जबान को ज्यादातर तर रखा जाए अल्लाह ताला के जिक्र से। तो ये काम कर लिया, मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये भी अजीब गरीब दुआ है। पहले इसका सादा मतलब अर्ज करता हूं, फिर उसकी थोड़ी हकीकत और उसका पस मंजर भी अल्लाह की ने तौफीक दी तो अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। लफ्जी तर्जमा यह है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे जहां भी आप दाखिल करें तो अच्छाई के साथ दाखिल करें, जहां भी दाखिल करें तो अच्छाई के साथ दाखिल करें, और जहां से भी निकालें तो अच्छाई के साथ निकालें, और मुझे अपनी तरफ से ऐसी ताकत अता फरमा दीजिए जिसकी मदद की जाती हो आपकी तरफ से। यानी जहां भी मैं दाखिल हूं, किसी घर में, किसी मकान में, किसी दुकान में, किसी शहर में, तो दाखिल हूं तो दाखिल भी अच्छी तरह हूं, और निकलो तो निकलो भी अच्छी तरह।
दाखिल होते वक्त भी ऐसी सूरत हो कि मैं आसानी से और बगैर किसी रुकावट के और बगैर किसी परेशानी के दाखिल हो जाऊं और निकलूं तो वो भी इस तरह निकलूं कि जिस मकसद के लिए गया था वो मकसद मेरा पूरा हो जाए और निकलने में भी कोई दुश्वारी पेश ना आए। और मुझे अपनी तरफ से अल्लाह ऐसी ताकत अता फरमा दीजिए कि जिसके साथ आपकी मदद हो। ताकत तो अता हो गई, लेकिन अगर आपकी मदद नहीं है, अगर आपकी तरफ से तौफीक नहीं है उस ताकत को सही इस्तेमाल करने की, तो वो ताकत बेकार है। लिहाजा ऐसी ताकत अता फरमाइए कि जिसके साथ आपकी मदद हो। इस दुआ का एक खास पस मंजर है, मैं बाद में अर्ज करूंगा, लेकिन जो ज़ाहिरी मफहूम है वो ऐसा है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं दाखिल हो रहा होता है, कहीं ना कहीं से खारिज हो रहा होता है। आदमी घर में दाखिल हुआ तो उस वक्त भी उसको आफियत चाहिए, खैरियत चाहिए, अच्छाई चाहिए कि जब घर में दाखिल हो तो मंजर अच्छा नजर आए, मेरे घर वाले खुश खुर्रम हो, आफियत से हो। ये चाहिए नहीं चाहिए जब आदमी घर में दाखिल हो रहा हो। जब घर से निकल रहा हो उस वक्त भी उसको आफियत चाहिए कि निकलने के, जब मैं निकलूं, जिस काम के लिए निकल रहा हूं तो वो अच्छाई के साथ निकलूं, निकलने में भी आसानी हो, दुश्वारी ना हो, जिस मकसद के लिए निकल रहा हूं उसमें कामयाबी हो। अगर आदमी कहीं मुलाजिम है और अपनी मुलाजिमत की जगह पर दाखिल हो रहा है तो वहां पर भी उसको जरूरत है इस बात की कि जब दाखिल हो तो अच्छाई के साथ दाखिल हो, यानी उसका माहौल दुरुस्त हो, उसके लिए जो काम है, उसके फराइज़ मनसबी हैं, वो ठीक तरीके से बजा लाए, इसकी जरूरत है। जब निकल रहा है दफ्तर से तो उस वक्त भी उसको जरूरत है। मदरसे में दाखिल हो रहा है पढ़ने के लिए, स्कूल में दाखिल हो रहा है, कॉलेज में दाखिल हो रहा है पढ़ने के लिए, तो उसको जरूरत है कि मैं जब दाखिल हूं तो दाखिल होने के वक्त, दाखिल होने के बाद एक तो दाखिला मेरा आसान हो जाए, सही तरीके पर जाऊं, सही वक्त पे जाऊं, और जिस मकसद के लिए जा रहा हूं पढ़ाई, उसमें कामयाबी हो, अच्छी तरह बात समझ में आए, याद रहे। निकले तो वो भी अच्छाई के साथ उसको चाहिए कि निकले। अस्पताल में दाखिल हो रहा है इलाज के लिए तो क्या चाहिए कि अच्छाई के साथ दाखिल हो। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फिस सफर व खलीफतु फिल अहल इला आखिरी। वो तो दुआएं अपनी जगह हैं ही, लेकिन ये एक आम दुआ ऐसी है कि जब भी कहीं दाखिल हो रहे हो तो अल्लाह ताला से दाखिले की अच्छाई भी मांगो और वहां से निकलने की अच्छाई भी मांगो कि जब मैं दाखिल होने के बाद निकलूं तो अच्छी हालत में निकलूं। ये ना हो कि अंदर दाखिल हुआ और फंस गया किसी मुसीबत में।